तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, हुन तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुन तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। Dear fan hearts of Agape Sisters, this is Jane and me, June, and we are Agape Sisters, and welcome to a new episode of Talk with Agape Sisters, which is to celebrate a woman who proved that God doesn't call the qualified, He qualifies the called. He doesn't chooses the wealthy, He chooses the willing. हमारी आज की गेस्ट एक बहुत ही फेमस वर्शिपर हैं, जिन्होंने इन ट्रू सेंस गॉड्स कॉलिंग को एक्सेप्ट किया। खंजरी बजाकर वो प्रस्तिश में मगन रही, और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने अपनी फर्स्ट जॉब के पीएफ से अपना फर्स्ट मसीही गीत फाइनेंस किया। Our today's guest is a worshipper who is promising yet soulful, a combination of mirror and shadow as a people. A mirror as she proves her truthfulness with God, and a shadow that will never leave the world of gospel singers. We have with us a worshipper from the other side of the national border, proving that God called her, equipped her, and prepared her according to His purpose. We have with us the pride of Punjabi worshipping, the lady herself, Sister Romika Masih. So here's a small AV on her account. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਗਾਪੇ ਸਿਸਟਰਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੌਂਗਸ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank you so much, Romika Baji, for joining us in this program. So without further delay, let's get on with the question. ए यीशु नासरी सॉन्ग पहला था, तो कैसे आइडिया आया कि गॉस्पल सॉन्ग पे? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਨਿਲ ਕਾਂਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਗੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਗੀਤ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ PF ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ PF ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਗੀਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਬਣਨਾ, ਇਵਨ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, लेकिन परमेश्वर ने उस गीत द्वारा काम किया। सुना है कि आपने अपना पहला सॉन्ग अपनी सैलरी से करवाया था। हाँ जी सिस्टर, ये सही बात है। मैंने जो पहला सॉन्ग है मेरा वो मैंने अपनी सैलरी से करवाया था। 2017 में मैं एक जगह पे काम करती थी, जॉब करती थी, और वहाँ पे मेरे मन में आया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए गीत रिकॉर्ड करवाऊँगी।
क्योंकि जब कभी मैं मतलब किसी को गीत किसी का सुनती थी, जैसे अनस मलिक साहब जी थे और पास्टर अनिल खान जी थे, उनके मैं गीत सुनती थी, तो उनके जो गीत थे मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी इनकी तरह एक अपना गीत रिकॉर्ड कराऊंगी। मैंने सोचा एक गीत रिकॉर्ड कराऊंगी, मतलब मेरे मन में कुछ ऐसा था नहीं कि मतलब गीत कैसे रिकॉर्ड करते हैं कैसे नहीं। बट ये सच है कि मुझे पीएफ मिला था मेरी फर्स्ट जॉब से, तो वो निकलवा के मैंने अपना पहला सॉन्ग जो आइए सुनास वो करवाया था। रोटी तो खाती होंगी आप, चावल हाथ नाल खाना पसंद है या चम्मच नाल? ऑफ कोर्स रोटी तो मैं खांदी हाँ, ते बट चावल ਜਿਹੜੇ ਆ मैं कभी भी हाथ नाल नहीं खाते। चावल मैंने हाथ नाल खाने भी नहीं आते, ईवन दो मैं एक दो बार ट्राई किया सीगा कि मैं हाथ नाल खा सका, बट मैंने नहीं खाने आते, इस करके मैं उन्होंने चावल चम्मच नाल ही खांदी है। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, इस गीत के मुताबिक ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा जी, इस सॉन्ग ਨੂੰ मैं दसना चाहती हाँ कि ਜਦੋਂ ਇਹ सॉन्ग मैं ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ सॉन्ग एक्चुअली मैं उदों एक दूसरे हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ काम करती सी और मैं गीत ਨੂੰ रिकॉर्ड करवाया। मैंने कोई भी आइडिया नहीं सी ये गीत खुदा ਨੂੰ कितना इस्तेमाल करने वाला, किस तरह इस्तेमाल करेगा, बट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ मैं तेरा रब गीत रिकॉर्ड ਕੀਤਾ ਸੀ, उस टाइम के उत्ते मेरे को ओनली आई थिंक 50 रुपीज़ मेरे बैग च होने हैं। मेरे को कोई इनफ मनी नहीं सी कि मैं गीत नूं कर सकां, लेकिन मैंने उस गीत नूं स्पॉन्सर किया किसी ने, खुदा ने मेरी मदद की। और दसना चाहती हाँ कि वो गीत नूं खुद ही शाम नूं मैं अपनी जॉब ते सी और शाम का टाइम सी और अपनी जॉब ते ही मैं उस गीत नूं रिलीज़ किया सी। ब्रदर जोबन नूं कहा कि तुसीं इस गीत नूं हुण लॉन्च कर दो, तो असीं प्रार्थना की और प्रार्थना करने तो बाद शाम को जो मैं अपनी जॉब ते सी, मैं अपना गीत उस स्थान के उत्ते रिलीज़ किया और खुदा दी दया नाल उस गीत ने बहुत सारा काम किया। रोमिका बाजी, आपके कपड़े बड़े कलरफुल होते हैं, कौन खरीदता है? जी कपड़े सिस्टर मैं ही खरीदती हाँ, हर शूटिंग के वास्ते या किसी भी ओकेशनस के वास्ते मैं खुद चूज़ करती हाँ। कलर कॉम्बीनेशन कपड़ियां का वो मैं खुद ही खरीदती हाँ। 2020 ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? 2020 ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵਾਂ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਆ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਰੁਕ ਗਈਆਂ और काफ़ी लोगों दी मीटिंग्स भी रुकियाँ, पर जो भी आ खुदा दी मर्जी आ, आप ओदी मर्जी के अनुसार जो भी आ वो करांगे डेफिनेटली। रोमिका बाजी, बचपन की कोई शरारत याद आती है? पहले आप बताओ, आप कितनी शरारतें करते हो? आप लोग भी करते? बचपन में तो बहुत सी शरारतें की और अभी भी। अच्छा, मैं थानू अपना दसदी हाँ। एक्चुअली शरारत नहीं कह सकते, लेकिन स्टार्टिंग तो एक चीज़ जी सी ਉਹ ਇਹ ਸੀ कि ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ और मैं ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਫੜ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। और मेरी ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਤੀਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ और मैं ਬੈੱਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਲੈ ਕੇ ਗਾਉਣਾ। और ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। और ਇਹ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ एंड फिर उस तो बाद जो ख़त्म हो जाना, फिर सारे को प्रसाद देना, ऑल थिंग्स आई एम डूइंग, ये सारी चीज़ें मैं कर दी थी। रोमिका बाजी, चलो हमें ये तो पता चल गया और हमारे व्यूअर्स को भी पता चल गया आप शरारती थे। शरारती ये तो है। रोमिका बाजी, तुसी गॉड गिफ्टेड हो या फिर तुसी उस्तादा कोलों सीखिया है? सिस्टर्स, मैं ये कह सकती हाँ कि जो भी मेरे कोल है ये एवरीथिंग गॉड गिफ्टेड आ। मैं किसी को सीखा नहीं होया या मैं किसी को मैनू किसी ने सिखाया नहीं है। ईवन दो मैं अपनी टेस्टमनी भी दिंदी हुंदी हाँ कि जदों खुदा ने मैनू चुनिया, मैनू कीबोर्ड ते सुर रख के, हारमोनीयम ते सुर रख के उहदा सुर ते भी नहीं गाना हुंदा सी, मैं सुर तो बाहर हो के गाउंदी सी। मेरे को अज जिन्नी भी ब्लैसिंग आ 110% गॉड गिफ्टेड आ और मैं सारी महिमा प्रभु यीशु से दिंदी हाँ। प्रेज द लॉर्ड।
ਰੋਮਿਕਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੰਜਰੀ ਵਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸਟਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ 2016 ਆਈ ਥਿੰਕ 15 ਸਮਥਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੰਜਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਿਆਂਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਖੰਜਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੰਜਰੀ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਗਿਟਾਰ ਓਨਲੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖੰਜਰੀ ਵਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ। ਯੈਸ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਆ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਮਿਕਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਰੋਮਿਕਾ ਬਾਜੀ ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਮਾਮਾ ਕੋਲੋਂ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਉੱਠੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡਾਂਟ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं। या आप अक्सर ही नंगे पाँव गीत रिकॉर्ड करती हैं, क्या कहेंगी? जी एक्चुअली ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੋਮਿਕਾ ਬਾਜੀ ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚॉकलेट? टॉफियाँ भी चॉकलेट भी, दोनों माय फेवरेट। चॉकलेट इज़ माय फेवरेट, टॉफियाँ इज़ माय फेवरेट, स्वीट्स इज़ माय रमिका फेवरेट। बाजी कौन सी पसंद है आपको? ओके एक्चुअली डार्क फैंसी डार्क चॉकलेट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਹਰੋਂ US ਤੋਂ ਸਮਟਾਈਮਸ, ਤੇ ਖੁਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਲਾਈਕ 5 ਸਟਾਰ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਚॉकलेट, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਈ ਵਿਲ ਈਟ। कभी आपको कोई ऐसा फैन मिला है जिसको आपने सेल्फी बनाते हुए डांटा हो? हाँ जी बहुत बार कई बार इदा होंदा है कि मैं वर्शिप कर रही होंदी हाँ स्टेज के उत्ते, और कई बार लोग कैमरा लैके स्टेज पर आ जाते फोटो कराउण, तो वो सब तो मैनू बैड थिंग लगती है, क्योंकि उस टाइम पर खुदा की प्रैजेंस उस थान पर मौजूद होंगी और तुसी खुदा दे नाल जुड़े हुए होंगे, और कोई तुहानू इदा कैमरा इदा होया या कई बार लोग कैमरा लैके स्टेज पर आ जाते, तो मैं डांट के उन्होंने नीचे पका, मैं नीचे उन्होंने भेज देनी कि तुसी नीचे जाओ, इस टाइम पे सेल्फी नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पे जो आराधना हो रही होंगी तो सेल्फी का कोई काम नहीं। आप पे इल्जाम है कि आप सिर्फ पंजाबी में गाती हैं। जी मैंने काफ़ी लोग कहते हैं कि तुहानू हिंदी सॉन्ग्स गाने चाहिए, पर मैं की करा, मैंने सारे राइटर पंजाबी च लिख के देंगे और मेरे मुँह ते पंजाबी सॉन्ग गुड लगते, बट मैं इन फ्यूचर के सोचती हाँ कि मैं हिंदी गीत लैके आवां और हिंदी गीत करा, बट हुण भी मेरे को काफ़ी गीत ने जिहड़े पंजाबी विच रिकॉर्ड होए पे ने और असीं उन्हां नूं रिलीज़ करांगे। तो जिद्दां खुदा दी इच्छा, मैं खुदा दे कोलों मंगदी, प्रभु जो तेरी इच्छा आ, तुसीं जो चाहुंदे आ जिद्दां दा मैं गीत गावां, वो वाला गीत तुसीं मैनूं दिओ। रोमिका बाजी अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कितने लोग हैं आपकी फैमिली में, अपने पेरेंट्स के बारे में। हाँ जी सिस्टर्स, असीं 3 भैणां आ, 3 सिस्टर्स आ, एंड मेरा एक छोटा ब्रदर है, और मेरे मदर तो मेरे फादर
ਅਸੀਂ बस इन्ने जाने हैं, तीन सिस्टर्स, एक ब्रदर। हाँ जी। तो रोमिका बाजी, फैमिली में किसके साथ सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और कौन सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है? माई मदर, मेरी मम्मी। एक्चुअली मैं दसना चाहती हाँ कि जो सब तो ज़्यादा मैंने घर च सपोर्ट करते आ और जिन्हों का सपोर्ट रहा आ लाइक वो मेरी मदर ने, क्योंकि एवरी टाइम जिन्नियां भी मीटिंग्स हुई मेरे मदर ही मेरे नाल जाते रहे आ। ईवन दो जो मैं अपना एक गीत करना सी उदों भी मेरी मदर ने मैंने सपोर्ट किया, ईवन दो स्टडी विच, मतलब हर टाइम एवरी टाइम मेरी मदर ने मैंने सपोर्ट किया। तो रोमिका बाजी, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे मदर हाउसवाइफ ने, मतलब घर देखते हैं और मेरे मीटिंग्स भी देखते हैं, और फादर प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ही इज़ अ प्रॉपर्टी डीलर। तो हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ जी सिस्टर्स, मैं दसना चाहती हाँ कि खुदा ने 2011 तो लैके 2017 तक खुदा ने अपने बारे दसिया किस तरह परमेश्वर च चलना आ, किहड़ियां हैबिट्स तुहानूं चेंज करने आ, किस तरह खुदा दे विच वधना है, तुहाडा रिलेशनशिप की खुदा च होना चाहिए। प्रभु ने मैनू उन्हां छोटिया छोटिया चीज़ों के विचों पहला कढ़िया, पहला तैयार किया, पहला अग दी भट्ठी दा एक जिद्दां सोने नूं ताया जांदा है और फिर वो चमक के बाहर आउंदा है। फिर वो एक समा सी जदों खुदा ने मेरी जिंदगी च काम करना सी। उस तो पहला खुदा ने मैनू मैं कह सकती हाँ कि जिद्दां अग दी भट्ठी दे विच सोना ताया जांदा उस तरह मैनू ताया। और जो मेरा गीत आया तो खुदा ने सचमुच मैनू तो उन्होंने भी ब्लैस किया। सो व्यूअर्स, ये हमारे लिए एक तरह का लेसन है कि अगर हमने प्रॉपर तौर पे वर्शिप करनी है और हमने खुदा की सताइश करनी है तो उससे पहले हमें अपना रिश्ता खुदा के साथ मजबूत करना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। साडे व्यूअर्स नूं की मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहती हाँ कि खुदा दे विच तुसी सही रीति दे नाल चलो। एकदम सारिया ब्लैसिंग्स के पिछे दौड़ना सही नहीं है। टाइम आउण ते खुदावंद तुहाडी जिंदगी दे विच हर वो एक चीज़ दिंदा जिहदे तुसी योग्य बन जाते हैं। ईवन दो हर एक इंसान दे विच कमी हुंदी है, लेकिन परमेश्वर डे बाय डे उस इंसान नूं वधाउंदे आ। पर सानूं सिर्फ ज़रूरत है खड़े ते अड़े रहन दी ताकि परमेश्वर साडी जिंदगी च काम कर सके। और एक आराधना का मैं मैसेज ये देना चाहती हाँ कि अगर तुसी एक वर्शिपर हो, अगर तुसी खुदा की आराधना करते हो तो वो ज़रूरी है कि रूह ते सच्चाई तो की जाए और खुदा तो मंगया जाए कि परमेश्वर मैनू एक अभिषिक्त आराधक बनने का अभिषेक दे, क्योंकि हर एक चीज़ के विच बने रहने लिए खुदावंद दे अभिषेक की लोड़ है। और जिन्हें भी मैनू लोग देख रहे हैं, तुहानूं खुदा दे अभिषेक की लोड़ है। जो भी तुसी आराधना करो, चाहे किसी नूं गाना आउंदा चाहे नहीं आउंदा, पर आराधना कोई भी इंसान कर सकता है और तुसी खुदा दे अभिषेक नूं मंग के खुदा दी आराधना कर सकते हो। ओके सिस्टर्स, तो तुसी मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चनस पूछे और मैं तुहानूं जवाब भी दिता है। सो मैं भी तुहानूं एक क्वेश्चन करना चाहती हाँ और पूछना चाहती हाँ कि तुहाडा जिहड़ा नाम अगापे सिस्टर्स है वो किस तरह पिया? रोमिका बाजी, हमारा अगापे सिस्टर्स नाम इसलिए क्योंकि हमारे जो चर्च का नाम है उसका नाम है अगापे असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान। सो इसी से हम तो जैन जूल एक्चुअली हमारा जो नेम है वो जैन जूल है, लेकिन हम अगापे सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। वाह, दैट्स ग्रेट। तो आप बहुत अच्छा गाती भी हैं और मुझे आपके गीत पसंद भी बहुत है। स्पेशली एक जो आपका वो गीत है, मैं आपको थोड़ा सा गा के सुनाती हूँ। मेरे सिर ते तेरा साया, मेरे सिर ते तेरा साया, यीशु सोनिया, यीशु सोनिया, यीशु सोनिया, यीशु सोनिया, मेरे सिर ते तेरा साया, मेरे सिर ते तेरा साया। बस इतना ही होता सिस्टर्स। Thank you, Romika Baji. You sang Thank it you so so much. beautifully. Thank you, sister. Thank you. Thank you for inviting me in your show. Thank you so much. Thank you so much once again for joining us in this program. Thank you. और I hope आपने बहुत enjoy किया होगा। Thank you so much. और आज हमने भी बहुत enjoy किया है
और आई होप व्यूअर्स आपसे बहुत इंजॉय किया। जूल, आज आपने इंजॉय किया? मैंने आज बहुत एंजॉय किया बिकॉज जूलिका बाजी इज वन ऑफ माय फेवरेट She's so cute. और मुझे तो आज बहुत मजा आया। जूल, आज मुझे भी बहुत मज़ा आया, बट नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू आवर Agape Sisters family. But before that, like and share this video, and to become a part of our Agape Sisters family, please subscribe our YouTube channel, which is Agape Sisters, and press the bell icon so that whenever we post anything on our YouTube channel, our Agape Sisters family will be the first ones to watch our videos. So stay tuned for our next episode of Talk with Agape Sisters. Stay safe, stay home. Bye bye.